Hello everyone, I am Sandeep Barela and welcome to my channel Physics Munitions. Today I am going to discuss the exercise from the chapter Geometrical Optics from a well-renowned book for JEE competition, Concepts of Physics by Dr. H.C. Verma. Sir, there are total 79 problems in this given chapter in the section of exercise. So I'll complete in part wise. So first of all, in today's lecture I am going to discuss only first 5 problems from geometrical optics. Okay, now the first problem is HCV. First problem, right? A concave mirror having a radius of curvature 40 cm is placed in front of an illuminated point source at a distance of 30 cm from it. According to our problem, let's say this is the concave mirror, alright? And here is an object which is placed at a distance 30 cm from the mirror, alright? And we have given the radius of curvature for this mirror is 40 centimeter, right? Since this given mirror is concave mirror, therefore focal length is given by f equals minus r by 2, because we know that the focal length for concave mirror is negative, right? Which implies f equals minus 40 by 2, that is 20 centimeter with negative sign, minus 20 centimeter with negative sign. Now the question is saying find the location of image. Since we know that the mirror formula is 1 by f equals 1 by v plus 1 by u. Here u is the position of object and v is the position of image and f is the focal length of the given mirror, right? Now using proper sign convention in this formula, here we can write u is minus 30 centimeter, right? And focal length is minus 20 centimeter. Substituting all these values, we can get 1 by minus 20 equals 1 by v minus 1 by 30, which implies 1 by v equals minus 1 by 20 plus 1 by 30. On solving this, we can get v equals minus 60 centimeter. This is the position of image, that is minus 60 centimeter. Minus sign signifies what? Minus sign signifies the location of image in the direction of object. That means in front of the mirror. It means somewhere here image, that is 60 centimeter. Alright. Now the second question is, a concave mirror forms an image of 20 centimeter high object on a screen placed 5 meter away from the mirror. Okay. First of all हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन HCV. Alright, here is a concave mirror, right? This is the principal axis. Alright, object is at a distance, let's say u. Okay, now the question is saying forms an image of 20 centimeter high object. That means height of object, that is h naught, is 20 centimeter. Alright, 20 centimeter. For this, image का formation कहाँ हो रहा है? Image का formation हो रहा है 5 meter away from the mirror. 5 meter away from the mirror means what? 5 meter away from the mirror. That means 5 meter equals 500 centimeters. Let's say यहाँ कहीं हमारे पास में क्या है, कोई एक screen है, right? This is the screen. Okay? This is screen.
यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको पता है कि अगर सेम साइड में अपना बन रहा है तो इसका मतलब है कैसी इमेज बनने वाली है अपनी, वो इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है, राइट। और उसकी जो हाइट दी गई है हम लोगों को, वो कितनी हाइट दी गई है? हाइट दी गई है हमें इमेज की, कितना है? 50 सेंटीमीटर, राइट, 50 सेंटीमीटर। दिस इज 50 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज एच आई, ऑलराइट, दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। यू फाइंड करना है अपनों को और इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है अपनों को कि फोकल लेंथ क्या होगी, राइट। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एच आई बाई एच नॉट इक्वल्स माइनस वी ओवर यू। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ अगर वैल्यूज़ को हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिल जाएगा? अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, दैट मीन्स नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। दैट मीन्स माइनस 50 एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज 20 इक्वल्स माइनस टाइम्स वी इज minus 500 divided by u. U is, we have to calculate u. Okay, from here 0 is 0 cancelled out, 5 से 100 times. From here we can get u equals minus times 200 centimeter. Alright, this is the position of object, minus 200 centimeter. Now for focal length of the mirror, we use mirror formula 1 by f equals 1 by v plus 1 by u, which implies 1 by f equals minus times 1 by 500 minus times 1 by 200. Now here LCM is 1000, alright, here minus 2 and here minus 5. On solving this we get minus 7 by 1000, right. That means focal length is minus 1000 by 7 centimeter, which is 142.8 centimeter, or we can say focal length nearly equal 1.43 meters, alright, with minus sign obviously, right. From here we can get the value of focal length, and minus sign signifies what? Minus sign signifies the mirror is concave mirror, right. Now we are moving on the third problem. Third problem क्या है? A concave mirror has a focal length of 20 centimeter, which means focal length is minus 20 centimeter because mirror is concave mirror. Alright, find the position or positions of an object for which the image size is double of the object size. Okay. अब हमें बोला गया है कि इमेज साइज जो होना चाहिए वो डबल होना चाहिए, किसका? ऑब्जेक्ट साइज का। तो आप लोगों को याद होगा जब केसेस आप लोगों को बताए गए होंगे कॉनकेव मिरर के, तो उसमें दो केसेस होता है हमारा, जब इमेज जो होती है वो अपनी क्या बनती है? मैग्नीफाइड बनती है, राइट। तो उसके लिए पहला केस अगर मैं कंसीडर करूं तो पहले केस में एच आई बाई एच नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है? क्या एच आई बाई एच नॉट की वैल्यू होने वाली है +2, दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा अपना? प्लस रहेगा। एंड सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में एच आई बाई एच नॉट दैट इज मैग्नीफिकेशन, वो क्या रहने वाला है? -2 रहने वाला है, राइट। अब हम लोग जानते हैं एच आई बाई एच नॉट होता किसके इक्वल है? इसके करस्पॉन्डिंगली अगर देखें तो ये माइनस वी बाई यू के इक्वल है, दैट इज 2, विच इम्प्लाइज वी इक्वल्स -2u, and here minus v by u equals -2, which implies v equals 2 times of u, right. Now we will use the mirror formula, okay, क्योंकि हम लोगों को u कैलकुलेट करना है, तो v u की टर्म्स हम लोगों को पता है, तो मेरा फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले केस के लिए अगर मेरा फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या लिखा जाएगा? 1 by v, v is -2u plus 1 by u, 1 by u is u equals 1 by f, 1 by f is -20, right. From here LCM is 2u, here -1 plus 2 equals -1 by 20. From here this is 1 by 2u equals -1 by 20, which implies u equals
2 10s are 20, right? So u equals minus 10 centimeter. This is the first answer. And for second one, now applying again the mirror formula, we will get 1 by 2 times of u, 1 by v, alright, plus 1 by u, 1 by u is 1 by u, alright, which simply equals 1 by f. F is minus 20, right? F is minus 20. Here LCM is 2 times of u. Here 1 plus 2 equals minus 1 by 20. 2 10s are 20, right? From here we get u is minus 30 centimeter. That means हमारे पास में कितनी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जिसके लिए मैग्निफिकेशन अपना क्या होगा, डबल होगा, राइट? तो हमारे पास में दो वैल्यूज है, एक है minus 10 और एक क्या है अपनी minus 30 सेंटीमीटर, ऑलराइट? नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज a 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length 7.5 centimeter. Okay, let's make a diagram for this particular problem for HCV. Okay, a 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror. ये convex mirror है, तो convex mirror मान लीजिए इस तरीके से है हमारे पास में. This is convex mirror. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. हमसे बोला गया इस पे परपेंडिकुलरली क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. उसकी हाइट गिवन है अपने को, कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर. हाइट इज 1 सेंटीमीटर, राइट? हाइट इज 1 सेंटीमीटर. तो हमसे कह रहा है कि टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ. इसकी फोकल लेंथ गिवन है अपने को कितनी, 7.5. तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है अपना, राइट? ठीक है. तो अब अपने को ये पता चल गया. तो हमसे क्या कह रहा है, find its distance from the mirror if the image formed is 0.6 centimeter in size. That means अपने को क्या दे दिया गया है, ये मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन कितना दे दिया है, HI/H0. बेसिकली वो दिया है अपने को 0.6, राइट? अब ये इमेज छोटी बन रही है तो इसका मतलब है केसेस में हम लोगों को पता है कि इमेज जो बनने वाली है वो छोटी इधर ही बनेगी. ये HI है अपना, मान लीजिए, ठीक है ना, डिमिनिश्ड है, राइट? तो अब यही HI/H0 सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वी ओवर यू. माइनस वी ओवर यू इक्वल्स 0.6. फ्रॉम हेयर v इज माइनस 0.6 यू, ठीक है. अब जब अपने को v पता चल गया तो फिर से हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, अपना मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई वी. v इज माइनस 0.6 यू प्लस 1 बाई यू. यू इज यू इक्वल्स 1 बाई एफ. एफ इज 7.5. पॉजिटिव क्यों है फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अपने पास में क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है, दिस वैल्यू इज, अगर इसको मैं हटाऊँ, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 2 5 10, 2 3 यानी कि अपने पास में क्या है, माइनस का 5/3u प्लस 1/u इक्वल्स 1/7.5, राइट? अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखो जरा, फ्रॉम हेयर माइनस 5/3. इसका एलसीएम ले सकते हैं अपने, क्या आ जाएगा, 3u आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या बचेगा, -5. एलसीएम ले लिया मैंने 3u. तो यहाँ पे बचा -5 और यहाँ पर क्या बचा, +3 इक्वल्स 1/7.5. फ्रॉम हेयर दिस इज 2 एंड 3 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 2 6, ऑलराइट, और 3 5 15, राइट? और यहाँ पर बचा 2. तो हम लोगों को u की वैल्यू अपनी यहाँ से कितनी मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल्स आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, राइट? u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 सेंटीमीटर. हम लोगों से यही पूछा गया था. दिस इज अवर आंसर. माइनस साइन फिर से क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये अपना लेफ्ट साइड में, दैट इज 5 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ऑलराइट? Now the question number 5, HCV. Okay, क्या कह रहा है, अ कैंडल फ्लेम 1.6 सेंटीमीटर हाई. इसका मतलब अपने को ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी है, 1.6 सेंटीमीटर, राइट? इज इमेज्ड इन अ बॉल बियरिंग ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर. अच्छा, बॉल बियरिंग की बात कर रहा है. ये बॉल बियरिंग मतलब क्या हो गया, अपने पास में कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, राइट?
तो उसका डायमीटर अपने को गिवन है। अगर डायमीटर गिवन है 0.4 तो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ले सकता हूँ, 0.4 डिवाइडेड बाई 2, राइट, उसका हाफ, दैट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी हाफ क्या होता है अपना, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 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 मिरर। अब ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी, फोकल लेंथ इज 0.2 डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ये अपने पास में फोकल लेंथ आ गई। ओके, नेक्स्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, एच नॉट 1.6 सेंटीमीटर। एच नॉट अपने को 1.6 सेंटीमीटर गिवन है। ऑल राइट, इफ द बॉल बेयरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम से 20 सेंटीमीटर अवे है बॉल बेयरिंग। इसका मतलब है कि बॉल बेयरिंग से फ्लेम भी कितना सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है यू कितना गिवन है आप लोग को, यू गिवन है -20 सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट है। ऑल राइट, तो हमसे कह रहा है फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज चाहिए और लोकेशन चाहिए अपने को। तो सिंपली क्या यूज़ कर लो, पहले मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है अपने पास में, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, विच एम्प्लाइज 1/f वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1/0.1 इक्वल्स 1/v कैलकुलेट करना है माइनस 1/20। ओके, तो यहाँ से अपने को कितना मिल गया, 1/v इक्वल्स 1/0.1 प्लस 1/20। इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से v की वैल्यू अपनों को कितनी मिलती है, v की वैल्यू आती है 0.099 सेंटीमीटर, ये आती है अपनी। या फिर इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, और v इक्वल्स 0.99 मिलीमीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नियरली इक्वल 1 मिलीमीटर, राइट, ये 1 मिलीमीटर। ये इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि आंसर अपनों को 1 मिलीमीटर ही गिवन है, ठीक है ना। तो आपको एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करना है तो वो आपको ये शायद मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए अपने जानते हैं, सिंस HI/H0 इज माइनस V ओवर U, राइट, V ओवर U। तो यहाँ से V ओवर U की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगी, HI की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, सॉरी HI कितना है कैलकुलेट करना है, H0 की वैल्यू कितनी है 1.6 इक्वल होना चाहिए माइनस टाइम्स V की वैल्यू कितनी आई है अपनी 0.099 सेंटीमीटर में रख रहा हूँ सारी वैल्यूज, ऑलराइट। तो V की वैल्यू इतनी आ गई डिवाइडेड बाय U कितना था अपने पास में -20। जब इसको इवेल्युएट करोगे यहाँ से तो HI की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.0079 सेंटीमीटर। ओके, या तो आप ये लिख लो HI की वैल्यू 0.0079 सेंटीमीटर, और इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, HI इक्वल्स मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 नियरली इक्वल लिख रहा हूँ मैं 0.08 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि अपनों को आंसर कुछ इसी टाइप से गिवन है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। ऑलराइट, तो आई होप 5 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की है इस लेक्चर में, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहीं पर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेम टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।